میں ہوں آپ کی میزبان ارم عمران اور میرے ساتھ پروگرام میں ہمیشہ کی طرح شریک گفتگو ہے آپ کی اپنی اور من پسند میزبان نبیلہ. جی نبیلہ، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، خدا کا بہت شکر ہے. سامعین، ماں کے لیے اپنے بچے کی تعلیمی دشواریاں دیکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ بھی اپنے بچے کے لیے ایسی کوشش کر رہے ہیں یا کسی کو ایسی صورتحال میں آپ نے دیکھا ہے تو پھر ہم آپ کی اس کام میں مدد کریں گے اور اپنے پروگرام میں آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے. آپ کو ہمارے پروگرام کا پتہ چل گیا ہے جہاں ہم ایک دوسرے کے مشکل حالات میں مدد کر سکتے ہیں اور یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں بھی بانٹ سکتے ہیں. سامعین، مشکل وقت کا ذکر کرتے ہوئے کیا آپ پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ آپ پریشان ہو کر اپنے آپ سے تنگ آ گئے ہوں اور آپ کو خود سے نفرت ہو گئی ہو، خاص طور پر تب جب آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہوں اور آپ کو سمجھ نہ آئے اور نہ ہی سیکھا ہوا کچھ یاد رہے؟ جی ہاں دوست، میرے ساتھ کبھی کبھار ایسا ہو چکا ہے. میں جب چھوٹی تھی تو مجھے دائیں اور بائیں ہاتھ کی پہچان بالکل بھی نہیں تھی. اور مجھے بھی پڑھنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی اور لفظوں کے جوڑ کرنا اور لفظ بنانا بہت مشکل لگتا تھا. لیکن جیسے جیسے میں پڑھتی گئی میرے لیے صفوں پر لکھا ہوا پڑھنا آسان ہو گیا. اور بڑے ہوتے ہوتے بھی ہمارے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سیکھی نہ جائیں اور بار بار کرنے سے بھی یاد نہ رہیں تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ ہمت ہار جائیں، ان کا مزاج گرم ہو جائے یا پھر وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر سوچنے لگے کہ وہ لکھنے پڑھنے اور سیکھنے کے قابل نہیں ہیں، یہ ان کے بس کا روک ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کو کوئی تعلیمی کمزوری، دشواری یا پھر ذہنی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کوئی تعلیمی دشواری ہو. سامعین، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تاکہ ہم اس قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکیں. ارم، پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم تعلیمی دشواریوں کے بارے میں ہی بات چیت کر رہے ہیں. ہم LDS کے بارے میں اور ان کی مدد کے بارے میں بھی بتاتے رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ LDS لوگ دنیا کو کچھ فرق نظر سے دیکھتے ہیں. کبھی ان کو لوگوں میں ادبی لحاظ میں فرق نظر آتا ہے اور کبھی کبھی ان کے مزاج میں بھی فرق نظر آتا ہے. LDS ہماری زندگی کے کئی حصوں میں اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں سکھانے اور ان کی صلاحیتوں کو بڑھانے میں ان کی مدد کرتے ہیں. آج میں تعلیمی دشواریوں کے سبق کو چند مفید باتوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے جو تعلیمی دشواریوں پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور ساتھ کچھ مفید سرگرمیاں بھی بتانے کی کوشش کروں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ باتیں بھی کریں گے. کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جسے دائیں بائیں، اوپر نیچے، چھوٹے بڑے کا پتہ نہ ہو؟ اس کو سمت شناسی کہا جاتا ہے، اور چھوٹے بچوں کو اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ دائیں بائیں میں فرق نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ بڑے ہو جائیں اور انہیں دائیں بائیں کا پتہ نہ چلے تو زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اس طرح کے لوگ پریشانی کا باعث ہوتے ہیں اور ٹھیک سمت میں نہیں چل سکتے. جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں یا دور چلے جاتے ہیں تو ان کو جانی پہچانی جگہ انجانی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور عام طور پر وہ تب پریشان ہوتے ہیں جب انہیں خلا میں آس پاس چیزیں نظر آتی ہیں. کبھی کبھی خلائی دشواری بھی کہتے ہیں. خلائی دشواری یا سمتی دشواری والا شخص صفحے کے ایک کونے پر لکھے گا یا اسے فاصلے کا پتہ نہیں چلے گا. مثال کے طور پر ایسا ممکن ہے کہ اس شخص نے آپ کا ہاتھ زور سے پکڑا ہو یا بالکل آپ کے نزدیک ہو کر بات کرے. آپ اس بچے کے لیے ایک کاغذ لیں، اس پر اس کا ہاتھ ٹریس کروائیں، پھر بچے کو ان دونوں ہاتھوں کا فرق دکھائیں اور سمجھائیں اور پہچان کروائیں. اسے بتائیں کہ دونوں ہاتھ ایک جیسے نہیں اور ان میں کیا فرق ہے. اسکول کی عمر کے بچے کے لیے کوئی بریسلیٹ لے کے اس کے ہاتھ میں باندھ دیں جس سے وہ لکھائی کرے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اسے ہاتھ پر کوئی پیدائشی نشان وغیرہ دکھائیں اور یاد کروائیں.
बार बार उसे पूछें कि तुम्हारा दायां हाथ कौन सा है और बायां हाथ कौन सा है। फिर उसे पूछें कि उसे कैसे पता चला कि उसका दायां हाथ कौन सा है और बायां हाथ कौन सा है। इसके अलावा घर के काम करते हुए या खेलते हुए उसे दाएं और बाएं में तमीज़ करवाएं। मुख्तलिफ खेलों के ज़रिए बच्चे को दाएं बाएं की पहचान करवाएं। इस तरह के खेलों में आगे पीछे, दूर नज़दीक, ऊपर नीचे और दाएं बाएं की तब्दीली लाई जाए। आखिरी तालीमी दुश्वारी जिसका इम्कान हो सकता है उसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि वो हाइपर एक्टिविटी या शॉर्ट स्टेशन स्पेस होता है। ऐसे बच्चे आराम सुकून से नहीं बैठते बल्कि हर चीज़ के साथ छेड़छाड़ जारी रखते हैं। कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं जिनको एक जगह बैठना बहुत मुश्किल होता है। वो ताकत से भरे होते हैं और बाकी सारे उनको देख देख कर थक जाते हैं। कभी कभी तो उनका अटेंशन स्पेन इतना छोटा होता है कि वो एक काम छोड़कर दूसरे की तरफ और दूसरा छोड़कर फिर वापस पहले काम की तरफ पलट जाते हैं। लगातार कोई काम नहीं करते और ना ही कोई काम मुकम्मल होता है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वो अपने हाथों पर जुल्म कर रहे हों। जो चीज़ नज़र आए उसे छेड़ना और लोगों को भी तंग करना। अगर ऐसे बच्चों या बालकों का डॉक्टरी मुआयना करवाया जाए तो फिर पता चलता है कि उनको हाइपर एक्टिविटी है और अगर उसके जिस्म में दोनों तरह के मर्ज हों तो फिर उस मर्ज को ADHD कहा जाता है। हो सकता है कि उसे सिर्फ ADHD या ADD हो या फिर ये बीमारियां दूसरी कई और तालीमी दुश्वारियों और बीमारियों से मिली हों। इसके लिए फिर ज़रूरी है कि बच्चे को बाकायदा उसका चेकअप करवाया जाए और क्योंकि उनका जो इलाज है वो दवाइयों से ही मुमकिन है और जो दवाइयाँ डॉक्टर तजवीज़ करे वही उनको दी जाएं ताकि एनर्जी में दुरुस्त तवाज़ुन पैदा हो जाए और तवाज़ुन कायम भी रहे। दूसरी सूरत में स्पेशल ग़िज़ा तजवीज़ की जाएगी जिससे तेज़ाबी असर या मसनूई अज़ाफ़तें कंट्रोल की जाएंगी। सबसे बेहतर और अच्छा मशवरा ये है कि किसी मेडिकल डॉक्टर से बात की जाए और बच्चे के लिए बेहतर से बेहतर हल तलाश किया जाए। हो सकता है कि आपको सबसे बेहतर ये लगे कि बग़ैर दवाइयों के ही बच्चा ठीक हो जाए और उसका रवैया बदल जाए। इससे भी बेहतर ये है कि आप उसके बारे में बहुत अक्लमंदी से सोचें। आपको फ़ैसला करना पड़ेगा कि बाकायदगी से दुआ करें और सारे ख़ानदान को भी दुआ का पाबंद करें ताकि जो कुछ इंसान नहीं करता वो खुदा कर सकता है। सामीन, वो कौन सी सरगर्मियां हैं जो आप अपने घर में बच्चे से करवा सकते हैं? बच्चे की मदद के लिए ज़रूरी है कि उसे सुकून से बिठाया जाए और सिखाया जाए और इसके लिए बच्चे को फर्श पर बिठाएं और बाजू फोल्ड करवाएं। जब आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाएं तो कोशिश करें कि जब तक कहानी मुकम्मल ना हो बच्चा उस जगह से ना उठे। शुरू में छोटी सी कोई कहानी दें, फिर बड़ी और फिर उससे भी बड़ी कहानी दें। आहिस्ता आहिस्ता कहानी का दौरानिया बढ़ेगा और बच्चे आदी हो जाएंगे। कुछ देर तक तेज़ बच्चे ऐसे बैठने से मुश्किल और दुश्वारी महसूस नहीं करते हैं। बच्चे अक्सर अच्छी कारकर्दगी दिखाना चाहते हैं लेकिन अपने आप पर कंट्रोल रखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे बच्चों को अक्सर शरारती बच्चे कहा जाता है। ये बात बहुत अहम और ज़रूरी भी है कि बच्चे या उनके कफ़ील उनको समझें और खामखा उनकी डांट डपट ना किया करें। अगर कोई समझे या सुने कि वो हर वक्त बुरे काम करते हैं तो फिर उनको बुरा समझते हुए ऐसा सलूक करना ज़रूरी हो जाता है। तरबियत करना और सीधी राह पर ले जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर वक्त बच्चे के लिए मनफी रवैया रखना ख़तरनाक साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पर बच्चे के अच्छे रवैये की उसे दाद दें, शाबाश कहें। इंसानी फितरत है कि जिस काम की आपको शाबाश मिले या फिर अच्छा अजर मिले, आपका दिल चाहता है कि वो काम आप बार बार करें। यहाँ हम रिश्वत या अच्छे रवैये के लिए पैसे देने की बात हरगिज़ नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये हर किसी की ख्वाहिश होती है। जैसे कोई बच्ची चाहेगी कि वो अच्छा काम करे तो उसे गुड़िया का तोहफा मिले और फिर वो बहुत देर तक वही काम करती रहेगी, मगर बेहतर अजर ज़ुबानी अजर है। मिसाल के तौर पर शाबाश देना, मुस्कुराना, खुश होना और तारीफ़ करना कि बेटा मुझे तुम पर बहुत फ़ख्र है।
या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि शाबाश मेरी बच्ची, तूने बहुत अच्छा काम किया है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि आज मेरी बच्ची ने वाकई मेरी बहुत मदद की है। सामईन, बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें ताकि उनका हौसला बढ़े। अगर बच्चा इन बातों को जान लेगा तो मुस्बत सोच की तरफ आना शुरू हो जाएगा और फिर आपको हर वक्त अपने बच्चे के सर पर सवार रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं वो कोई बुरा काम ना कर दे, कहीं बिजली के प्लग में हाथ ना डाल दे। इसी तरह के मुख्तलिफ ख़यालात या काम वगैरह ये आपके सर से उतर जाएंगे। यकीन कर लें कि अच्छे रवैये का मतलब बच्चे की समझ में आ जाना चाहिए। मसलन अपना कमरा वो खुद साफ करे, लड़ाई झगड़ा ना करे और जो काम आप करने को कहें वही काम करे। कभी कभार मौका देकर आप खुद बच्चे को काम करके दिखाएं। मिसाल के तौर पर प्रैक्टिकल करके बच्चे को समझाएं। बच्चे को काम ऐसे करके दिखाएं कि आप बच्चे हैं और वो बड़ा है, ताकि उसमें एतमाद पैदा हो और आप जैसा रवैया बच्चे से चाहते हैं उसे वैसा करके दिखाएं। बच्चे को समझने और समझाने की ज़रूरत है कि आपकी तवक्को क्या है। जब कभी सज़ा की ज़रूरत पड़े तो उसकी गलती के मुताबिक सज़ा दें। बच्चे को समझने और समझाने की ज़रूरत है कि आप उसे कौन सी या कैसी तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं। जब कभी सज़ा की ज़रूरत पड़े तो उसे उसकी गलती के मुताबिक ही सज़ा दें। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे ने दीवार पर कुछ लिख दिया है तो उसे उसकी माकूल सज़ा इस तरह से आप दे सकते हैं कि उससे दीवार साफ़ करवाई जाए। सख्त सज़ा देने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। कोशिश करें कि हर सज़ा तामीरी हो। इस मुख्तसर से सीज़न में तालीमी दुश्वारियों के बारे में बहुत मुख्तसर बातें जो हैं वो हमने आपसे शेयर की हैं। मैं आपको ये मसाइल समझाना चाहती हूँ और आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ। मैं ज़बूर नंबर 36 की 5 से लेकर 9 आयात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिनमें इस तरह से रकम है: ए खुदावन, आसमान में तेरी शफ़क़त है, बड़ी तेरी वफ़ादारी अफ़लाक तक बुलंद है, तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानद है, तेरे अहकाम नहायत उम्मीक है। ए खुदावन, तू इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है। ए खुदा, तेरी शफ़क़त क्या ही बेशकीमत है। बनी आदम तेरे बाजुओं के साए में पनाह लेते हैं, वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि ज़िंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। याद रखें, इसमें उम्मीद है। सामईन, आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं हम, और ये भी चाहते हैं कि आप ये समझें कि हालात कैसे भी हों, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत हो, हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद मौजूद है। हम बात करेंगे कि हम एक बच्चे की तरह बन के अपनी ज़िंदगी में कैसे इनकलाब ला सकते हैं। क्या आप अपने हालात पर काबू पाकर इसमें से निकल सकते हैं? नहीं, आप परिंदे की तरह पर फैलाकर दूर तक उड़ नहीं सकते, बल्कि आप अपने ईमान के पर लगाकर उड़ सकते हैं और उन मुश्किलात से रहाई पा सकते हैं। आइए बात करते हैं कि कैसे। बच्चों को संभालना कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उनमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे भी बच्चे संभालना बहुत अच्छा लगता है। मैं उनकी दिलचस्पियाँ जानना चाहती हूँ, उन्हें पसंद करती हूँ और उनसे सवाल करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी वजह यह है कि छोटे होते हुए जब भी कोई मुझे पूछता था कि मैं क्या बनूंगी, तो मेरा जवाब होता था कि मैं टीचर बनूंगी, और मैं टीचर बनी भी। बच्चों को पढ़ते और तरक्की करते देखकर मुझे इंतहाई खुशी महसूस होती है और उनकी तालीम में और तरक्की में हिस्सा लेना ही मेरी असल पहचान है। जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो उसे बड़ी मुश्किल पेश आती है और उनके लिए मदद करके वक्त के मुताबिक और ज़रूरत के तहत मदद करना मेरा मंशूर है और बाइसे मुसरत भी होता है। हर बच्चा अपनी मिसाल आप होता है, हर कोई अनोखी तबीयत रखता है, हर कदम पर उसकी तामीर और तरक्की मुख्तलिफ और आगे बढ़ने के तरीके भी मुख्तलिफ होते हैं। सामीन, खुदा अपने कलाम पाक बाइबल मुकद्दस में बच्चों के बारे में बहुत कुछ फरमाता है। ज़बूर 127 में खुदा फरमाता है,
देखो, औलाद खुदावन की तरफ से मेरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। हमें बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए और कैसा सलूक करना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत कुछ कलाम मुकद्दस हमें बताता है। यस्सु ने मिसाल देकर हमें समझाया है और दिखाया है कि बच्चों के साथ कैसे पेश आना है। मरकज़ उसका 10वां बाब और उसकी 13 से 16 आयात में इस तरह से लिखा है। फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना न करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल न करे, वो उसमें हरगिज दाखिल न होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। यीशु के शागिर्द ना समझ सके कि उसके लिए बच्चों की क्या अहमियत है। उनका ख्याल था कि बच्चे यीशु के काम में रुकावट डालेंगे, इसलिए उन्हें यीशु के पास आने से रोकना अच्छा काम है। लोग अक्सर छोटे बच्चों को ऐसी नज़र से ही देखते हैं। उनका बच्चों को टाइम देना कोई अहमियत और कदर नहीं रखता है, क्योंकि वो वक्त ज़ाया करते हैं और काम के वक्त तंग करते हैं। मगर यीशु को जब ऐसा नज़र आया तो वो नाराज़ हुआ। उसने अपने शागिर्दों से ऐसे सलूक की वजह से खफगी का मुजाहरा किया। उसने 2 बड़ी ज़रूरी बातें की। पहली बात ये कि बच्चों को मेरे पास आने दो, और दूसरी बात ये कि उन्हें हरगिज़ मना ना करो। फिर यीशु ने छोटे बच्चों को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया। फिर यीशु ने वजाहत से बताया कि लोगों का खुदा की बादशाही में जाने का तरीका यही है कि उनका ईमान बच्चों की तरह सादा और पुख्ता हो। बच्चों का भरोसा बड़ा पक्का होता है। आप उनसे जो कुछ कहेंगे वो बगैर कोई सवाल किए मान जाएंगे। हमें बड़े मोहतात होकर बच्चों से बात करनी चाहिए और उनके पुख्ता एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यीशु ने चारों तरफ मुड़कर लोगों की तरफ देखते हुए कहा, इस बात पर जोर दिया कि हम खुदा की बादशाही में तब तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक हमारा ईमान छोटे बच्चे जैसा पुख्ता ना हो जाए। फिर यीशु ने उन छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में बिठाते हुए उन्हें मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया, यानी उनकी मिसाल दी। फिर उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। मुझे यकीन है कि उस वक्त यीशु के शागिर्द उन बच्चों को किसी और नजरिए से देख रहे होंगे जो पहले से मुख्तलिफ था। यीशु ने ना सिर्फ उन्हें जुबानी समझाया बल्कि अमली तौर पर भी दिखाया कि बच्चों की अहमियत और कदर क्या है। एक और मौके पर जब यीशु के शागिर्द एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि आसमान की बादशाही में कौन सबसे बड़ा है, तो यीशु ने मिसाल देने के लिए फिर एक छोटे बच्चे को गोद उठाया। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 18वें बाब की आयत नंबर 2 से 5 में ये लिखा है, उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस छोटे बच्चे की तरह बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा, और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। बड़े होने की तकरार में यीशु ने अपने शागिर्दों को बहुत ज़्यादा डांटा और फिर कहने लगा, मत्ती उसके 18वें बाब की 6 आयत में यूँ रकम है, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समंदर में डुबो दिया जाए। उसने अपना फरमान जारी रखा और कहने लगा कि खबरदार इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। क्या ये आयत हमें बच्चों के बारे में बहुत अहम बात नहीं बताती? वो कितने खास और आला कदर हैं।
خدا کو ان کی کتنی زیادہ فکر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی خاص فکر کریں۔ خدا نے ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیے ہیں اور ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم ان کی جسمانی، ذہنی، روحانی اور جذباتی فکر کریں جیسے خدا چاہتا ہے۔ سامعین، جب ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا گھر بسا لیتے ہیں اور ان کے اپنے بیوی بچے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ان کی فکر لگی رہتی ہے۔ جس طرح ان کے چھوٹے ہوتے ہوئے ہم ان سے پیار کرتے تھے، اسی طرح جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں اتنا ہی پیار کرتے ہیں اور ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی۔ سامعین، اپنا بھروسہ ہمیشہ خدا پر رکھیں۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان ارم عمران اور نبیلہ کو اجازت دیجیے۔